So, good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 62. Okay, lecture number 62. Okay, so guys, today we have to start our last unit. Okay, what is the name of the unit? Radiations. This is your last unit, unit number 3rd. We already complete all the units, guys. Unit number 1, unit number 2, 3, 4, 5, and this is the last unit is radiations. Okay, we know that if you observe in this diagram, suppose if you consider this figure, so in this figure we know the concept of the convection. This is the mode of the convection, heat transfer. The heat is transferred through this medium. Okay, through the medium, there is a fluid mediums, air is considered, right? We know the meaning of conduction. The heat is transferred in what is in solid medium, that is the conductions. We already learned convection in free convection, forced convection. We already learned very detail in conduction also. Okay, now this is the mode of heat transfer is radiations. We know the radiation is very faster rate of heat transfers. Okay, so this is the concept for radiations. So let's we start. So if you observe here, we know this is the earth, okay, and this is the sun. So from the sun, the energy which is received on the earth surface, the energy which is received on the earth surface in the form of what is? In the form of radiations. Okay, so let's we define the radiation. First of all, what is radiation? Heat transfer is defined as the transfer of energy, okay, transfer of energy across the system boundary by means of what is electromagnetic mechanisms or electromagnetic waves, okay, which is caused solely by the temperature difference. okay, क्योंकि हमको पता है कि अर्थ का टेम्परेचर क्या है, लेस है एज कंपेयर टू द व्हाट इज सन. तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होंगी, एनर्जी ट्रांसफर होंगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. लेकिन काय के फॉर्म में होंगी बच्चों, ये होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. okay, that is called as the radiations. So whereas the heat transfer by conduction and convection takes place only in the presence of medium. बराबर है, क्योंकि हमको कंडक्शन और कन्वेक्शन करने के लिए किसकी आवश्यकता है बच्चों, हमको आवश्यकता है मीडियम की. बराबर है. लेकिन रेडिएशन को अगर देखेंगे, रेडिएशन हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम. यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है मीडियम की. ओके, रेडिएशन एक्सचेंज इन अ फैक्ट ऑकर मोस्ट इफेक्टिवली इन वैक्यूम आल्सो. मतलब रेडिएशन की जो एनर्जी ट्रांसफर होंगी ये वैक्यूम में होंगी, क्योंकि हमको पता है कि अर्थ अगर सन को हम कंसिडर करेंगे तो एक जगह तक एटमॉस्फेयर है, समझो ये एटमॉस्फेयर की लेयर है, लेकिन इधर क्या है, पूरा कंप्लीट वैक्यूम है. लेकिन तभी भी सोलर एनर्जी कहाँ पे आ रही, अर्थ पे आ रही. मतलब इसका मतलब है कि रेडिएशन जो ट्रैवल कर सकते हैं वो कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, वैक्यूम में. बराबर है. इसलिए रेडिएशन इज अ फास्टर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एज कंपेयर टू द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. And further, the rate of heat transfer by conduction and convection varies as a temperature difference to the first power, whereas radiant heat exchange between the two bodies depends on the difference between their temperature to the fourth power. मतलब यहाँ पे टेम्परेचर का बच्चों कंसिडर करेंगे तो फोर्थ पावर में हीट ट्रांसफर है, और कंडक्शन में टेम्परेचर का सिर्फ टी. अगर हमारे पास में 2 है तो ये 2 आएगा, लेकिन रेडिएशन में ये 2 to the power 4 कितना हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 4, 4 into 8, 8 into 16 टाइम्स ज़्यादा हीट ट्रांसफर होंगी एज कंपेयर टू द कंडक्शन एंड कन्वेक्शंस. ओके, so both the amount of radiations and quality of a radiation depends upon the temperatures. The dissipation from the filaments of vacuum tube or the heat leakage through the evacuated walls of the thermos flask are some familiar example of a heat transfer by radiations. Okay, so if you observe here, the contributions of a radiation to heat transfer is very significant at a high absolute temperature level, such as those prevailing in a furnace. फर्नेस अगर हम कंसिडर करेंगे, कंबशन चेंबर कंसिडर करेंगे, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड इन स्पेस एप्लीकेशंस. ओके, द सोलर एनर्जी इंसिडेंट अपॉन द अर्थ इज आल्सो गवर्न बाय द लॉज ऑफ रेडिएशंस. अभी मैंने बताया कि
जो सोलर एनर्जी आ रही है सन से, वो भी काय की वजह से आती है, रेडिएशन. द एनर्जी विच इज रेडिएटिंग सरफेस रिलीजेस इज नॉट अ कंटिन्यूअस बट in the form of successive and separate discrete packet or quantum of energy is called as photons. मतलब वो जो एनर्जी आती है बच्चों h इज इक्वल टू एच न्यू. ये एच न्यू क्या है हमारा, क्वांटम है, या फिर इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट पैकेट्स. काय के फॉर्म में आती है बच्चों एनर्जी, एच न्यू के फॉर्म में. एच इज अ प्लंक कांस्टेंट एंड म्यू इज द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट. ये फॉर्म में वो एनर्जी आती है, E इज इक्वल टू एच न्यू. Okay, the photons are propagated through the space as a rays. The movement of a swarm of a photons is waves. The photons travel with a speed equal to the light. We know the C is equal to lambda into mu. Yes or no? Yes. This is the speed of the light, and the speed of the light is very very high. What is it? Is 3 into 10 to the power 8 meter per seconds. Okay. इन अ स्ट्रेट पाथ विथ अनचेंज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट रहेगी. ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो कभी भी चेंज नहीं होंगी. व्हेन दे अप्रोच रिसीविंग द सरफेस दे ऑकर्स रिकन्वर्शन ऑफ द वेव मोशन इनटू द थर्मल एनर्जी. मतलब ये रेडिएशन से जो निकलेंगी, ये दिख रहा है आपको, ये हमको वेव दिख रहा है ऐसा वेव के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे फिर उसका कन्वर्शन काय में हो जाएगा बच्चों, थर्मल एनर्जी में. मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा. तो आगे देखिए, thermal energy which is partially observed or reflect or transmitted through the receiving surface. अगर हमारे पास में ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये समझो इसके पास तरफ रेडिएशन आ गया इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, बराबर. कितनी एनर्जी आएंगी, एच इज इक्वल टू एच न्यू. ओके, तो कुछ एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएंगी, कुछ एनर्जी ये ऑब्जर्व कर लेंगे और कुछ एनर्जी ये रिफ्लेक्ट कर देगा. ये ट्रांसफर होगी, ये ऑब्जर्व होगी और ये रिफ्लेक्ट होगी, डिपेंडिंग अपॉन द दिस सरफेस. कौन से क्वालिटी का सरफेस है, नेचर ऑफ द सरफेस रिसीव द थर्मल रेडिएशंस. ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ एंड आर प्रोपोगेटेड इन द स्पीड ऑफ लाइट. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड्स. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एज शोन इन फिगर, ये पढ़ेंगे हम अभी. द डिस्टेंस बिटवीन वन फॉर्म ऑफ रेडिएशन अनदर लाइज इन द फ्रीक्वेंसी एफ एंड वेवलेंथ इज लैम्बडा. एक तो फ्रीक्वेंसी आप एफ से बताइए या फिर न्यू से बताइए. कौन कौन सी बुक में एफ से, किसमें न्यू से है. तो कौन सा रिलेशन हमारे पास में, सी इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी. सी इज इक्वल टू, जो अभी मैंने लिखा था, न्यू इंटू लैम्बडा. ओके, ये देखिए बच्चे, अभी अभी अपन ने लिखा था यहाँ पे, द इमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन रेंज लाइज बिटवीन द वेवलेंथ. कितनी वेवलेंथ है उसकी, 10 to the power -7 मीटर एंड 10 to the power -4 मीटर्स. Depends upon nature, temperature and state of emitting surface. However, with gas depends is also upon the thickness of emitting layer and gas pressure. मतलब ये सब डिपेंड है ये सरफेस पे, कौन से क्वालिटी का सरफेस हमारे पास में, उसके ऊपर ही डिपेंड्स है कौन से क्वालिटी की हमारे पास में एनर्जी आ रही, कौन से क्वालिटी की हमारे पास में रेडिएशन आ रहे बच्चों. तो देखिए ये the thermal radiations exhibit the characteristics similar to the visible light and follow the optical laws. कुछ इसके अंदर visible होंगे और कुछ optical law होंगे. This can be reflected, refracted, are subject to scattering and absorption when they are passed through the medium. अगर ये मीडियम, अभी मैंने बताया ये मीडियम है, इसके ऊपर रेडिएशन आ रहे हैं बच्चों, तो अभी हमने बड़ा कुछ क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब रिफ्रैक्टेड हो जाएगा. रिफ्रैक्टेड बोले तो ट्रांसफर होना. कुछ क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. कुछ क्या हो जाएंगे, स्कैटरिंग हो जाएगा लाइट का, ऐसा स्कैटर हो जाएंगे, ये स्कैटरिंग विल बी देयर्स. ओके, और कुछ ये मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेगा व्हेन दे पास थ्रू द मीडियम. ये मीडियम में जब ये जाएंगे बच्चों, तो दे गेट पोलराइज आल्सो. पोलराइज मतलब उनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. एंड वीकेन इन स्ट्रेट विथ द इनवर्स स्क्वायर ऑफ अ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द रेडिएटिंग सरफेस. ओके, तो ये कुछ स्पेक्ट्रम दिया हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का. कौन कौन से रेज है हमारे पास में, गैमा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, थर्मल रेडिएशन है और माइक्रोवेव है. इनकी हमको यहाँ पे अलॉन्ग द, अगर इनकी वेवलेंथ दी है बच्चों, गैमा रेज अगर कंसिडर करते हैं तो वो कहाँ पे है, 10 to the power -5,
10⁻⁴ के रीजन में है। एक्सरे अगर हम कंसिडर करते हैं रेडिएशन में, ये रेडिएशन का टाइप्स है, तो एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो काय में आएगी 10⁻⁴ से लेकर तो 10⁻²। अल्ट्रा वायलेट जो एकदम डेंजरस रेडिएशन है उनकी रेंज आएंगे 10⁻² से 10⁻⁻1। विजिबल जो है हम हमारे अर्थ पे आते हैं मैक्सिमम विजिबल रेडिएशंस, ओके। फिर बाद में इंफ्रारेड आते हैं, उनकी वेवलेंथ है 1 से लेके तो 10। यस और नो? यस। बाद में हम देखेंगे माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है वो है 10⁻⁴ मीटर से। यस और नो? यस। यहाँ पे भी मैंने एक दूसरे डायग्राम बनाई है आपके लिए, जैसा ये गैमा रेज, अब ये दिया है नैनोमीटर में, पहला जो था हमारा मीटर में, ये नैनोमीटर में है, ओके। गैमा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, अल्ट्रा वायलेट हो गए, इंफ्रारेड हो गए, रडार हो गए, एफएम के हो गए, ये टीवी के हो गए, शॉर्ट वेव हो गए और एएम। सो दिस आर द वेरियस रेडिएशन स्पेक्ट्रम्स, ठीक है। ये उसकी अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ है, ओके। एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, इसकी एनर्जी भी दी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो यू शुड नो दिस डायग्राम, ओके। अब देखिए बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पे, वेरी वेरी आईएमपी। व्हाट इज द टाइटल? सरफेस इमिशन प्रॉपर्टीज। मतलब इमिशन मतलब बाहर निकलना, ये सरफेस है, इसमें से ये जो एनर्जी रेडिएट हो रही इसको कहते हैं हम इमिशंस। कितनी एनर्जी यहाँ से इमिशन हो रही या फिर इमिटेड हो रही, ओके। तो देखिए, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड है? पहला है टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, ये जो सरफेस हमको दिख रहा है इसका टेम्परेचर कितना है। फिर नेचर ऑफ द सरफेस, इसका नेचर ऑफ द सरफेस कैसा है, स्मूथ है कि रफ है कि जिगजैग है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। देन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इसकी वेवलेंथ कितनी है रेडिएशन की या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसके ऊपर उसका इमिशन डिपेंड्स है। द पैरामीटर which deal with the surface emission properties are given below। तो देखिए पहला डेफिनेशन एकदम आईएमपी डेफिनेशन, ये बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है। ये कोई भी शेप की बॉडी हमारे पास में, ओके। टोटल इमिसिव पावर इट इज शो बाय द लेटर कैपिटल ई, ओके। तो क्या डेफिनेशन देखिए, द इमिसिव पावर इज डिफाइन एज द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशंस, टोटल इससे रेडिएशन इमिट हो रही है अभी, हाँ, दिस इज द इमिशन ऑफ द रेडिएशंस इमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया। इसके पर यूनिट एरिया से, इसके जो एरिया है, एरिया हमारे ने कितना कंसिडर किया, 1 मीटर स्क्वायर, पर यूनिट एरिया एंड टाइम, ओके। कितने रेडिएशन इससे इमिट हो रहे हैं, इट इज एक्सप्रेस इन वैट पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए द अमाउंट ऑफ रेडिएशंस इमिसिव पावर इमिटेड बाय अ बॉडी, अब ये रेडिएशन मतलब एनर्जी जूल में आएंगे, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो E इज इक्वल टू जूल। एरिया गाय में आ गया बच्चों मीटर स्क्वायर में, टाइम आ गया सेकंड में, तो ये जूल पर सेकंड यानी क्या होता है, वैट, तो यूनिट क्या आ गया इसका फिर वैट पर मीटर स्क्वायर, ओके। द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी अकॉर्डिंग टू द स्टीफन बोल्ट्जमैन इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द फोर्थ पावर। मतलब EB इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा, सिग्मा क्या है हमारा, स्टीफन बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट्स, और इसकी वैल्यू कितनी रहती है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वैट मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4, ओके। सो वी गेटिंग दिस EB इज इक्वल टू सिग्मा A टू द पावर 4 वैट, ओके। यहाँ पे अगर हम A कंसिडर करते हैं 1 तो ये आएगा EB इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर वैट पर मीटर स्क्वायर। दूसरी डेफिनेशन देखिए बच्चों, यही बॉडी हमारे पास में है, यहाँ पे भी जो रेडिएशन इमिट कर रही थी अभी EB बराबर है, इसका था हमारे पास में सिग्मा T टू द पावर 4 या फिर सिग्मा A T टू द पावर 4। अब यहाँ पे दूसरा देखिए मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर, मोनोक्रोमैटिक जो है वो शो बाय द लेटर व्हाट इज ई लैम्बडा से शो होगा। मोनो बोले तो सिंगल, क्रोमैटिक बोले तो लाइट। तो देखिए इट इज ऑफन नेसेसरी टू डिटरमाइन द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सरफेस, ओके। So at any given temperature, the amount of radiation emitted per unit wavelength, कितनी वेवलेंथ के रेडिएशन इसके ऊपर से इमिट हो रहे पर यूनिट वेवलेंथ, ओके। वेरीज एट अ डिफरेंट वेवलेंथ, वो अलग अलग रहेंगे वेवलेंथ, किसकी ज़्यादा रहेंगी वेवलेंथ, किसकी कम रहेंगी। तो फॉर दिस पर्पज मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर ई लैम्बडा ऑफ द सरफेस इज यूज। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस पर यूनिट वेवलेंथ।
मतलब ये जो सरफेस है इसके ऊपर यूनिट एरिया से रेडिएशन आ रहे हैं, लेकिन सबकी वेवलेंथ क्या रहनी चाहिए, कॉमन रहनी चाहिए, पर यूनिट वेवलेंथ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस पर यूनिट वेवलेंथ। तो पर हर वेवलेंथ से कितनी रेडिएशन आ रहा है, कितने वेवलेंथ के रेडिएशन हमारे पास में आ रहे हैं, इसको कहते हैं हम मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, एंड इट इज शो बाय द लेटर ई लैम्बडा। यस और नो? यस। तो इसका फार्मूला हमारे पास में ये है बच्चों, E इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई लैम्बडा डी लैम्बडा वैट पर मीटर स्क्वायर्स। ओके, ठीक है, क्योंकि ई लैम्बडा की डेफिनेशन आएंगी द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी पर यूनिट वेवलेंथ। ओके, पर यूनिट वेवलेंथ। तो ई बराबर क्या हो गया हमारे पास में, ई लैम्बडा इंटू दिस लैम्बडा वेवलेंथ, या ऐसा ये फार्मूला बना। और ई का हमको यूनिट पता था, ई क्या था हमारा इमिसिव पावर, इसका यूनिट था हमारे पास में वैट पर मीटर स्क्वायर्स। थर्ड डेफिनेशन देखिए, इमिशन फ्रॉम अ रियल सरफेस। कोई भी हमारे पास में एक बॉडी है, कितना इमिशन इससे हो रहा है, इससे। ओके, द इमिसिव पावर फ्रॉम अ रियल सरफेस इज गिवन बाय, व्हाट इज द फार्मूला, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा a टू द पावर 4। और ये जो एप्सिलॉन है दैट इज कॉल्ड द इमिसिविटी ऑफ द मटेरियल्स। तो इमिसिविटी की क्या डेफिनेशन देखिए, इट इज डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ अ सरफेस ऑफ अ बॉडी टू रेडिएट द हीट। मतलब कोई भी बॉडी है, ये बॉडी में से कितनी हीट निकल रही है, कितनी हीट को ये रेडिएट कर रहा है। इट इज ऑल्सो डिफाइन एज द इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, कोई भी बॉडी, to the emissive power of a black body of equal temperature, that is called as the emissivity। मतलब emissivity is equal to the emissive power of any body to the emissive power of what is black body। मतलब एक हमारे पास में ये सिंपल बॉडी है, दूसरी जो बॉडी हमने कंसिडर की, सपोज ये कौन से हमारे पास में, सपोज ब्लैक बॉडी है, इनका रेशियो भी क्या रहता है बच्चों, इमिसिविटी। ओके, इट्स वैल्यू varies different substance ranging from what is 0 to 1। इमिसिव पावर की वैल्यू 0 to 1 से चेंज होंगी। फॉर अ ब्लैक बॉडी इसकी वैल्यू कितनी रहेंगी बच्चों, 1। ये ध्यान में रखना आपको, इमिसिविटी फॉर अ ब्लैक बॉडी इट इज 1। फॉर अ वाइट बॉडी इमिसिविटी इज 0, क्योंकि वो इमिट ही नहीं करेगा, ओके, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा रेडिएशंस वाइट बॉडी। एंड फॉर ग्रे बॉडी इट लाइज बिटवीन द 0 to 1। हीट में वेरी विद टेम्परेचर और वेवलेंथ, लेकिन टेम्परेचर बॉडी का चेंज हो गया, वेवलेंथ रेडिएशन की चेंज होंगे, तो इमिसिविटी भी चेंज होंगी। बाद में पढ़ेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन डेंसिटी, प्रेशर पढ़ेंगे, फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे हम रेडियोसिविटी की, फिर हम पढ़ेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस इमिशन एंड ई रेडिएशन प्रॉपर्टीज। ओके, तो देखिए अभी ये कंसेप्ट एकदम IMP कंसेप्ट है बच्चों, एब्जॉर्टिविटी एकदम IMP, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, एब्जॉर्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी। तो देखिए बच्चों इसके अंदर क्या है, व्हेन इंसिडेंट रेडिएशन इज शो बाय द लेटर G। हमारे पास में एक मेन रेडिएशन है G, दिस इज द इंसिडेंट रेडिएशन। ये हमारे पास से समझो सन से आ रहा, तो हमने बता दिया कैसे बच्चों, G से इंसिडेंट radiations। okay, then after that guys, if you observe here, the incident radiation G is called as irradiations। इसको कभी कभी irradiation भी कहते हैं। is defined as the total incident radiation on a surface from all direction per unit time per unit area of a surface is called as radiations। ये G is equal to the amount of radiations, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट, ये बॉडी पे रेडिएशन आ रहे हैं, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज इंसिडेंट। ओके, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, समझो ये बॉडी हमारे पास में सब डायरेक्शन से इसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है। ओके, पर यूनिट, अब रेडिएशन आ गई तो उसका एनर्जी आ गई जूल, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। तो जी का यूनिट क्या आ गया फिर, जूल पर सेकंड, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, मतलब जी का यूनिट आ गया फिर वैट पर मीटर स्क्वायर्स। ओके, and it is expressed by what is, it is expressed by a letter G। impings on a surface, ये सरफेस पे ये
इंसिडेंट हो रहा है, ये मटेरियल सरफेस हमारे पास में है, तो इंसिडेंट रेडिएशंस। ओके, तो 3 impings happens. What are the impings happen? A part is reflected, GR, part is transmitted, what is GT, and remainder is GA is absorbed. So these 3 things happen will be there. So depending upon the characteristics of a body, उसके ऊपर ये सब डिपेंड रहेगा। कोई बॉडी ज़्यादा मटेरियल मतलब हीट एब्जॉर्ब कर लेंगी, कोई बॉडी ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट कर देंगी। जैसे वाइट बॉडी अगर हमारे पास में तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन करेगा, अगर ब्लैक बॉडी है तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी गाइस। यस और नो? यस। नाउ देन, तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल्स, तो ये इतनी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा, तो उसमें से कुछ एब्जॉर्ब होगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ ट्रांसफर हो गया। इसलिए हमने लिखा बच्चों G इज इक्वल टू GA प्लस GR प्लस GT। कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए, कुछ बॉडी में से निकल गए और कुछ बॉडी ने रिफ्लेक्ट कर डाले। यस और नो? यस। देन व्हाट इज हियर नाउ, तो फिर ये इक्वेशन जो हमने बनाया, सपोज इक्वेशन 1, तो इसको हमने डिवाइड किया दोनों साइड से, कैसे? G से, तो GA अपॉन G, GR अपॉन G एंड दिस। तो यहाँ पे अभी देखिए बच्चों, कुछ सिंपल डेफिनेशन हमारे पास में आ जाएंगी। जैसी अल्फा आ गया हमारे पास में, एक रो आ गया हमारे पास में, तीसरा आ गया हमारे पास में ये टाउ। तो टाउ बोले तो क्या है हमारा? ट्रांसमिसिविटी। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिविटी। तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज ट्रांसमिटेड अपॉन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसमिसिविटी। बाद में हमारे पास में बच्चों रिफ्लेक्टिविटी, बाद में फिर एब्जॉर्टिविटी। तो एब्जॉर्टिविटी शो होगी हमारे पास में अल्फा से। तो द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी टू द रेशो द अमाउंट ऑफ मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्टिविटी। और बाद में आएगा हमारे पास में ये रो, दैट इज रिफ्लेक्टिविटी। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय अ बॉडी टू द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिविटी। तो इसलिए अल्फा रो प्लस टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया? 1, क्योंकि जी कैंसिल होके 1 बचेगा। यस और नो? यस। तो फिर देखिए यहाँ पे, ऑब्जर्व हियर, so where alpha, if you consider the alpha, so alpha is what is? Absorptivity, means the fraction of incident radiation absorbed. Then another is what is? Reflectivity, the fraction of incident radiation is reflected, and tau is the transmittivity, the fraction of incident radiation is transmitted। क्योंकि tau का जो रेशो है वो क्या था हमारे पास में? GT अपॉन G। अब GT अगर हमारे पास में सपोज है 10 और टोटल हमारे पास में गिर रहा 50, तो इसका आंसर काय में आएगा फिर? 1/5। तो ये काय में आएगा बच्चों? एकदम फ्रैक्शन में आएगा। ओके, 0.2 में, बराबर है। तो सब जो वैल्यू रहेंगी ये काय में रहेंगी? फ्रैक्शन में रहने वाली है। इसलिए वहाँ पे क्या लिख के आया बच्चों? फ्रैक्शन लिख के आया। फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड radiations, guys. Yes or no? Yes. And when incident radiation absorbed, it converted into the internal energy. अब यहाँ पे अगर ये रेडिएशन अगर ऑब्जर्व हो गए तो ये बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। मतलब इसका यू बच्चों इंक्रीज हो जाएगा, राइट? देन नाउ वी हैव टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज द ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी हमने सबने देखी है बच्चों, बराबर है। अगर हम धूप में अगर घूमते हैं तो धूप में घूमने के बाद में आपने देखा होगा कि हमारा सर एकदम गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कौन से कलर का है? बाल हमारे ब्लैक कलर के हैं। अगर मार्केट में घूम रहे, कहीं पे घूमने गए, हमने अगर ब्लैक कलर का शर्ट पहन लिया तो वो भी कैसा हो जाएगा? जल्दी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है, रिफ्लेक्शन उसका कम है। तो देखिए ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट पढ़ते हैं अभी यहाँ पे। जैसे ये हमारे पास में एक ब्लैक बॉडी दी है यहाँ पे। ब्लैक बॉडी इज थ्योरेटिकली परफेक्ट एब्जॉर्बर विच एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ फॉलिंग ऑन इट। मतलब हर टाइप की जो वेवलेंथ होंगी
वेवलेंथ का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है, एनी काइंड ऑफ द वेवलेंथ दिस ब्लैक बॉडीज एब्जॉर्ब दिस रेडिएशंस। ओके, तो देखिए अभी ये ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट, फॉर अ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी, ओके, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखिए अल्फा, अल्फा क्या है, किसका कितना इसका बच्चों 1 है। जैसा भी आपने अभी अभी जो रिलेशन प्रूव किया, अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इसका 1 है तो रो 0 हो गया, टी 0 हो गया, तो सच बॉडी इज कॉल्ड एज व्हाट इज ब्लैक बॉडी। मतलब उसके लिए फिर ये दो टर्म अगर 0 बन गए तो फिर अल्फा क्या आएगा हमारे लिए, 1 ही आएगा, इसके लिए ब्लैक बॉडी के लिए, बराबर है। So black body is one which neither reflects or not transmit any part of the incident radiation but absorb all of it. But in practice, a perfect black body alpha is equal to 1 does not exist. ये practically possible नहीं है, सिर्फ हम imaginary में बना रहे। Okay, so however it is concept is very important. Second देखिए हमारे पास में कौन सी बॉडी है, ओपेक बॉडी। ओके, सो व्हेन नो इंसिडेंट रेडिएशन इज ट्रांसमिटेड टू द बॉडी, अगर हमारे पास में कोई भी शेप की बॉडी है, एक ये वाली, इसमें से कोई भी रेडिएशन ट्रांसमिट ही नहीं होगा, टी आर क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, मतलब ये जी आर क्या रहेगा यहाँ पे 0 रहेगा, टाउ क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, इसको कहते हैं हम ओपेक बॉडी। तो ओपेक बॉडी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन 0, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा फिर, अल्फा प्लस रो इज इक्वल टू 1 फॉर विच बॉडी, फॉर ओपेक बॉडी। थर्ड बॉडी हमारे पास में बच्चों कौन सी, व्हाइट बॉडी। तो व्हाइट बॉडी में देखिए क्या है, इफ ऑल इंसिडेंट रेडिएशन फॉलिंग ऑन अ बॉडी आर रिफ्लेक्टेड इट इज कॉल्ड एज द व्हाइट बॉडी। तो हमारे पास में रिलेशन आएगा फिर रो अल्फा टाउ इज इक्वल टू 1, तो अब ये क्या कर रहा, सब रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा, तो उसके लिए अल्फा 0 टाउ 0, तो फिर रो इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। ओके, तो सच एज कौन कौन से गैस, सच एज हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड देयर मिक्सचर सच एज एयर हैव अ ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिकली यूनिटी। ओके, अब यहाँ पे देखिए बच्चों कंसेप्ट, रिफ्लेक्शन आर 2 टाइप्स। यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन दिया हमारे को, जैसे एक आदि हमारे को रेगुलर रिफ्लेक्शन दिया है, दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दिया है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, देखिए बच्चों, ये रेडिएशन इंसिडेंट हो गया, ये बॉडी पे एक सरफेस है हमारे पास में, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ से सपोज एंगल से आ रहा, समझो 30 डिग्री से आ रहा, तो वही एंगल लेके क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको कहते हैं हम व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शंस। और तीसरा क्या है बच्चों, डिफ्यूज रेडिएशंस, मतलब इसके ऊपर बॉडी के ऊपर रेडिएशन आ रहा है लेकिन उसका एंगल जो है हर जगह पे क्या है, अलग अलग है, देर इज अ नो कॉमन एंगल। ओके, ये कहते हैं हमारे डिफ्यूज रेडिएशंस, यस और नो, यस, डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस मीन देर इज नो सिमिलर एंगल्स, द एंगल इज डिफरेंट, नॉट इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, वहाँ पे अलग अलग है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, उसको कहते हैं हम डिफ्यूज रेडिएशंस। तो देखिए यहाँ पे उसका कंसेप्ट दिया है, regular reflection implies that the angle between the reflected beam and normal to the surface is equal angle। जैसा ये बॉडी थी अभी, ये हमने इसके ऊपर इमेजिनरी नॉर्मल डाली ये वाली, और ये रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट हो गए, बराबर है, दिस इज द नॉर्मल और दिस इज द रे मतलब रेडिएशन विथ सेम नॉर्मल्स। Reflection from a highly polished and smooth surface approaches a specular characteristics। Diffuse reflection देखिए, incident beam reflected in all direction। Most of the engineering materials have a rough surface and this rough surface give the diffuse reflections। Yes or no? Yes। अब आगे देखिए बच्चों, हमारे पास पे कौन सी बॉडी अभी हमने पढ़े, ग्रे बॉडी, बराबर है। तो ग्रे बॉडी में देखिए, इफ द रेडिएटिव प्रॉपर्टीज, ये जो हमारे पास में रेडिएटिव प्रॉपर्टीज है अभी, अल्फा है, रो है, टाउ है, बॉडी आर अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म ओवर द एंटायर वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रम, मतलब सबकी जो वेवलेंथ है वो सेम रहेंगी, देन सच बॉडी इज कॉल्ड एज व्हाट इज ग्रे बॉडी। ओके, ग्रे बॉडी इज आल्सो डिफाइंड एज one whose absorptivity of a surface does not vary with
टेम्परेचर्स, उसकी एब्जॉर्बिविटी चेंज नहीं होंगी टेम्परेचर के साथ में, वो कांस्टेंट रहेंगी, एंड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस वो भी कांस्टेंट रहेगा। इसलिए अल्फा बराबर क्या हो गया, अल्फा वेवलेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो भी चेंज नहीं होगा। इसी को कहते हैं बच्चों ग्रे बॉडी। बाद में हमारे पास में कौन सी, कलर बॉडी। कलर बॉडी सबने देखी, अलग अलग प्रकार के कलर रहते हैं हमारे पास में, लाल, पीला, हरा, नीला। यस और नो? यस। तो कलर बॉडी में देखिए क्या है हमारे पास में, कलर बॉडी इज वन हुज एब्जर्विटी ऑफ अ सरफेस वेरीज विथ वेवलेंथ ऑफ अ रेडिएशन। मतलब उसका जो एब्जर्वेशन है वो चेंज होते जाएगा वेवलेंथ के साथ में। वेवलेंथ कम ज़्यादा होगी तो उसका एब्जर्वेशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम ज़्यादा होते रहेगा। लेकिन उस ग्रे बॉडी में वैसा होगा क्या, ग्रे बॉडी में वैसा नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। अब देखिए बच्चों एकदम आईएमपी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कंसेप्ट, वेरी वेरी आईएमपी कंसेप्ट, ब्लैक बॉडी। जब हमने यह कंसेप्ट पढ़ने के लिए हमने क्या, ब्लैक बॉडी ली हमने। ओके, अ ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जर्व ऑल रेडिएंट एनर्जी रीचिंग इट्स सरफेस। जैसे ये ब्लैक बॉडी है, जितनी भी एनर्जी आएंगी ये सब क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। is an idealization with which radiation characteristics of a real bodies can be convenient compare। ठीक है, the black body has the following properties। देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसकी, it absorb all the incident radiation falling on it, does not transmit or reflect regardless of wavelength and directions, its emits maximum amount of thermal radiation। मतलब जितनी उसने एब्जॉर्ब कर ली उतनी भी बाद में फिर क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट भी करेगा, मतलब इमिट करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं इमिशन करेगा यहाँ से। यस और नो? यस। एट ऑल वेवलेंथ, सब टाइप की वेवलेंथ, अलग अलग टाइप की वेवलेंथ के रेडिएशन उसमें से इमिट भी होंगे एट एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे। क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया वेवलेंथ चेंज होगा, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ में। इट डिफ्यूज इमिटर्स। ओके, द रेडिएशन इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज इंडिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शंस। ओके, वो कौन सी भी डायरेक्शन में इमिट होंगे, वो कोई डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं रहने वाले हैं। बाद में देखिए, इट्स इमिट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एट ऑल वेवलेंथ एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये भी हमने पढ़े। तो देखिए अब ये बॉडी, कंसिडर अ हॉलो इनक्लोजर, ये हमने एक हॉलो इनक्लोजर कंसिडर किया, ये वाला, दिस इज विथ अ वेरी स्मॉल होल। यहाँ पे हमारे पास में एकदम ये स्मॉल होल है। ओके, ये आपको दिख रहा होगा स्मॉल होल, कहाँ पा, इसको एपरेचर भी कहते हैं। okay, the radiation, the incident radiation passing through the small opening, some of this energy is absorbed by inside surface। अब ये रेडिएशन जब इसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है तो ये जो सरफेस है ये एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब बाय द इनसाइड सरफेस, एंड सम इज रिफ्लेक्टेड। अब देखिए कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ इसने इस तरह से रिफ्लेक्ट कर लिया, ये दिखा आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, बराबर है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज एब्जॉर्ब ऑन अ सेकंड इंसिडेंस। लेकिन जब ये दूसरी बार कहीं पे जाके स्ट्राइक कर लेगा तो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगेन अ स्मॉल फ्रैक्शन इज रिफ्लेक्टेड, वहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखिए कहीं पे भी चले गया, फिर वहाँ से एब्जॉर्ब हो गया और रिफ्लेक्ट हो गया। आफ्टर द नंबर ऑफ सच रिफ्लेक्शन द अमाउंट अनऑब्जर्व्ड इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड वेरी लिटिल ऑफ ओरिजिनल इंसिडेंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक आउट ऑफ द ओपनिंग। मतलब इसमें क्या होगा बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व होंगी, रिफ्लेक्शन जो रेट है वो बाहर जाने का बहुत ही कम। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगी इधर जा रही, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ पे ऑब्जर्व होगी, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे भी ऑब्जर्व हुई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे मतलब सब अंदर ही घूम रहा सब काम। अ स्मॉल होल लीडिंग इनटू द कैविटी, वो कैविटी का नाम हमने लिखा, इट इज अ होलरम। होलरम, ओके, दस एक्ट्स वेरी नियरली एज अ ब्लैक body because all the thermal radiant energy entering through it get absorbed। ये आपको ध्यान में रखना है। तो होलरम यूजुअली केप्ट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर T। कभी कभी इस पे भी सवाल आता है, एक्सप्लेन द होलरम। होलरम इज नथिंग बट द विच बॉडी, ब्लैक बॉडी। तो ओके, ये दिख रहा आपको सब, ये सब रेडिएशन एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट हो गए, यहाँ पे चले गए एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा जीरो रेडिएशन जा रहे हैं सब। ओके, तो देखिए एग्जांपल, आइसोथर्मल फर्नेस विथ अ स्मॉल एपरेचर,
approximate a black body and frequently used to calibrate the heat flux gauges, thermometers and other radiometric devices. ओके अभी इसके अंदर देखिए दूसरा कंसेप्ट है बच्चों, अभी एक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है देखिए, अभी द लॉ स्टेट दैट द इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स। ओके मतलब इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है उसके फोर्थ पावर में है। तो ईबी बराबर क्या हो गया, फिर ईबी बराबर हो गया हमारे पे सिग्मा। सिग्मा क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट्स। ओके इज नथिंग बट द इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, सिग्मा इज नथिंग बट द स्टीफन बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट्स। उसकी वैल्यू ये ध्यान में रखना है आपको, कितनी रहती, 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4 बराबर है। तो फिर ई बी इज इक्वल टू 5.67, ये वैल्यू हमने पुट की, और T/100 टू द पावर 4। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं, एकदम आईएमपी लॉ एग्जाम में आता है, दैट इज द किरचॉफ्स लॉ। क्या है किरचॉफ्स लॉ, देखिए इट स्टेट दैट द लॉ स्टेट दैट एट एनी टेम्परेचर्स, कोई भी टेम्परेचर हो, ये बॉडी हमारे पास में है, द रेशियो ऑफ टोटल इमिसिव पावर ई टू द एब्जॉर्बिविटी अल्फा इज कॉन्स्टेंट्स। मतलब ई अपॉन अल्फा जो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एट एनी टेम्परेचर। कोई भी शेप ऑफ द बॉडी है, कोई भी शेप ऑफ द बॉडी है, इसका टेम्परेचर कुछ भी रहो, यस और नो, यस। अल्फा इज कांस्टेंट फॉर ऑल सब्सटेंस which are in thermal equilibrium with their environments, that is called as the Kirchhoff's law। तो देखिए हमने एक ये बॉडी कंसिडर की बच्चों, वॉल। ओके तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, लेट्स कंसिडर लार्ज रेडिएटिंग बॉडी। एक हमने बॉडी कंसिडर की, सरफेस एरिया ए, उसका एरिया कितना है बच्चों, ए है। ये देखिए बॉडी एनर्जी को रेडिएट कर रही है, इसका एरिया हमको ये दिखा। विच इनक्लोज अ स्मॉल बॉडी 1, अब इसके अंदर ही हमने एक छोटी बॉडी रख दी, ये बॉडी के पास में, उसके अंदर, इसका हमने नाम दिया A1। ये बड़ी बॉडी हमारे पास में, दिस इज अवर रेडिएटिंग बॉडी। जैसे हम एक आधे रूम में बैठे हैं, वो रूम क्लासरूम है हमारी, वो क्लासरूम में हम बैठे हैं, तो हम हो गए स्मॉल बॉडी, वो क्लासरूम हमारी होगी रेडिएटिंग बॉडी। ओके हमारा एरिया हो गया A1 और वो क्लासरूम का एरिया हो गया A, एज शोन इन फिगर। बस ऐसा समझ के चलो यहाँ पे, लेट द एनर्जी फॉलिंग ऑन द यूनिट सरफेस ऑफ द बॉडी एट द रेट ऑफ EB। इतना EB एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही, देखिए ये EB एनर्जी इंसिडेंट हो रही किसके ऊपर, ये स्मॉल बॉडी A1 के ऊपर। सो ऑफ दिस एनर्जी जनरली अ फ्रैक्शन ऑफ अल्फा विल बी ऑब्जर्व बाय द स्मॉल बॉडी। अब ये जो A1 है, ये अल्फा कुछ एब्जॉर्व कर लेगा, इसके पास में कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा रहेगा, अल्फा A1। ओके अल्फा A1 EB in which alpha 1 is the absorptivity of the body when the thermal equilibrium is attained। बाद में दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, हम क्लासरूम में बैठे तो क्लासरूम का हमारा टेम्परेचर बाद में सेम हो जाएगा। द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी मस्ट इक्वल टू द एनर्जी इमिटेड्स, ये कंसेप्ट लग जाएगा। ओके तो देखिए say E1 per unit surface, so thus at equilibrium we have write down what is A1 E1 is equal to alpha A1 B EB। now we remove the body 1 and replace it by body 2। अब उसके अंदर की जो ये बॉडी थी हमारे पास में A1, इसको हटा के हमने अब यहाँ पे दूसरी बॉडी पुट कर दी, उसका नाम दिया हमने 2। तो वो अल्फा 2 रेडिएशन ऑब्जर्व कर रही, द रेडिएंट एनर्जी इम्पिंग ऑन दिस बॉडी इज अगेन EB, उसके अंदर EB बन गया। ये देखिए अभी, अब इसको हटा के हमने यहाँ पे A2 पुट किया, जैसा क्लासरूम में हम निकल के बाहर, दूसरा बच्चा आके बैठ गया वहाँ पे। ओके तो वो अल्फा 2 रेडिएशन को एब्जॉर्व करेगा, लेकिन उस पर जो क्लासरूम से एनर्जी गिरेंगी वो तो EB गिरने वाली है। तो वो केस में हमने लिखा फिर A2 E2 अल्फा 2 A2 EB। बाय कंसिडरिंग जनरली ऑफ द बॉडी वी ऑब्टेन EB इज इक्वल टू व्हाट इज E1 अपॉन अल्फा 1। ये पहले के लिए देखिए बच्चों, पहला अगर हम कंसिडर करते तो A1 हो गया कैंसल, तो यहाँ पे फिर EB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
ई बी इज इक्वल टू आ जाएगा E1 अपॉन अल्फा 1। उसी तरह से यहाँ पे भी A2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ई बी इज इक्वल टू आ जाएगा E2 अपॉन अल्फा 2। ओके, तो इस तरह से हम कितने भी बच्चे वहाँ पे बैठाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये सब इक्वली मिलेगा। तो इसलिए ई बी बराबर क्या आ गया, ई अपॉन इमिजिव पावर अपॉन अल्फा। एंड एज पर द डेफिनेशन ऑफ द इमिजिविटी, ई इज इक्वल टू व्हाट इज इमिजिव पावर ऑफ एनी बॉडी अपॉन द इमिजिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पे फिर ई बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ई अपॉन, ये डिवाइडेशन में चले गया ये। अब यहाँ पे ये इक्वेशंस और ये वाला इक्वेशन दोनों को क्या किया आपने, कंपेयर किया। तो उसका LHS क्या है बच्चों, सेम है, यस और नो, यस। तो LHS सेम है तो इसकी फिर RHS भी क्या होगी, सेम। तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया फिर E अपॉन अल्फा इज इक्वल टू इमिजिव पावर E अपॉन इप्सिलॉन E। तो ये इमिजिव पावर कैंसिल हो गया, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, इमिजिविटी। ओके, वी गेटिंग दिस रिलेशन। तो अल्फा always smaller than 1, therefore the emissive power is always smaller than the emissive power of a black body at equal temperatures। यहाँ पे किरचॉफ लॉ का एक और दूसरा स्टेटमेंट बन गया। द किरचॉफ लॉ आल्सो स्टेट दैट द इमिसिविटी ऑफ अ बॉडी ओके is equal to its absorptivity when a body remains in thermal equilibrium with the surroundings। that is also the nothing but the Kirchhoff's law guys। तो या तो इसको आपको प्रूव करना है, बहुत बार एग्जाम में डेरिवेशन आता है। ओके, so I stop here। in next lecture we will be discuss the Planck's law, then Wien's displacement law, then intensity of radiations। okay, this derivation, then Lambert cosine's law। this will be discussed in our next lectures। okay, I stop here। if you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons। so stay at home, stay safe, thank you very much।